नमस्कार, मैं हूं घेना वैष्णवी। आज के संवाद का विषय है स्वच्छ भारत अभियान ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। और इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करेंगे देश के जाने माने हस्ती डॉक्टर विश्व मोहन कटोच। Dr. Vishwa Mohan Katoch is a well-known name in medical world and needs no introduction. But because it is customary to introduce the speaker, let me take this opportunity to briefly go through his achievements. Dr. Katoch received his MD from AIIMS New Delhi in 1978 and rose to become the director of Jalma, Agra in the year 2001, where he served till 2008. Then he became the founder secretary of Department of Health Research, where he played an important role in developing and implementing new schemes such as establishment of multidisciplinary research units in government medical colleges, model rural health research units, virology research laboratories in the state and medical colleges, scheme for human resources for health research focus in medical colleges, and grant in aid scheme for projects focused on intersectorial collaboration and coordination. He became the Director General ICMR, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India from 2008 to 2015. Presently, he is the President of JIPMER Puducherry and also of AIIMS Madurai. And he also chairs the National Academy of Science India ICMR on Public Health Research at Rajasthan University of Health Sciences, Jaipur, promoting research in State Health University for Rajasthan with more than 260 medical, dental, pharmacy, nursing, and other health allied institutions. He is also chairman of Lipra Society. He has contributed over 320 research papers in Indian and foreign journals on tuberculosis, leprosy, HIV, and molecular biotechnology. He is the recipient of various national and international awards and fellow of all National Science Academies of India. Thus, you see the sky soaring accomplishment of this down-to-earth gentleman who has kindly consented to share his thoughts on Swachh Bharat Abhiyan, particularly during these COVID times. Namaskar, Dr. Katoch. I welcome you to share your thoughts for today's Samvad on Swachh Bharat Abhiyan during COVID times. Dr. Saab, how can we make the public aware about the maintenance of hygiene in the society during the ongoing COVID pandemic? See, the current pandemic isn't a great opportunity, actually. It's a great challenge, but it's a great opportunity. Swachh Bharat Abhiyan, which I think is one of the great tributes to the father of the nation, and I think one very shining example of the present Prime Minister's leadership, I think that has changed the country. So, in the context of the respiratory infections also, we need to change. We changed last year. We did a lot, actually. We changed to a large extent. Yes, sir. But the swachhata is totality, actually. So swachhata is you have to really make everybody show that what you do and how it can help, actually. Yes. So maintaining a clean environment, not crowding, taking precautions. If you're having a cold, then you wear a mask to protect others. Yes. So I think that kind of a culture has to set in, because that has changed the landscape. That's why India has been successful for first year, actually. Yes. And hopefully we can succeed the next year also. Yes. So I think this is the time to tell what works, what doesn't work, actually. Yes. I think this is the opportunity to say that swachhata is a very broad concept which should cover everything. Yes. So मेरा सवाल नेक्स्ट यही है सर, इससे रिगार्डिंग ही है कि स्वच्छता अभियान जो हमने अभी कहते हैं कि सिर्फ क्या ये लिमिटेड है क्लीनिंग स्ट्रीट्स के लिए, रोड्स के लिए अक्रॉस इंडिया? इज इट जस्ट फॉर दैट ओनली, डॉक्टर साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। वो तो एक शुरुआत थी, क्योंकि हमारे जिस कंट्री की ना तो देखने में वो बात बुरी लगती थी, पर साथ साथ एक और चीज थी कि बहुत सारी जो इन्फेक्शंस हैं जिससे बच्चे मरते हैं, एडल्ट्स में डायरिया, इंटरेक्ट इन्फेक्शंस होती हैं, और उन सभी पे बहुत ज्यादा मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी है उसकी।
और उसका एकमात्र कारण ये यही थी, जो आपके टॉयलेट नहीं थे। अच्छा, उसके साथ में आपके जो इन्फेक्शन जो थी वो फीकल और ओरल रूट मेंटेन रहता था पानी के जरिए। Yes. तो वो जो किया पहले फेज में, वो आई थिंक बहुत ही महत्वपूर्ण था और सस्टेन करके साबित कर दिया कि वो कामयाब है एक्चुअली। तो अब दूसरा पार्ट जो होता है, जो रेस्पिरेटरी रूट से इन्फेक्शंस फैलती हैं, जो जिसका कि कोरोना एक एग्जांपल है, इन्फ्लुएंजा है, दूसरे बहुत सारी इन्फेक्शंस हैं जिनसे भी लोग रोज क्लिनिक्स में पड़े होते हैं, हॉस्पिटल में पड़े होते हैं, बहुत सारे मर भी जाते हैं। जी जी। तो वो उसके लिए स्वच्छता के अलग मापदंड हैं जो लोगों को दिमाग में आने चाहिए। अच्छा, वो मापदंड पिछले साल कुछ समझ आए हैं, जैसे कि एक दूसरे पे मत चढ़ो भीड़ की तरह, ठीक है, एक दूसरे का गैप मेंटेन करो। जी जी। अच्छा, मास्क यूज करो। अच्छा, अपने हाथों को एकदम तुरंत वॉश कर लो। तो जिस रूट से नाक में इन्फेक्शन घुस सकती है और दूसरे में जा सकती है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे स्टेप्स चाहिए। वो स्टेप्स हमारे जहन का हिस्सा बन जाने चाहिए अब। हाँ जी सर, बट एक और उसका है डॉक्टर साहब, बायोमेडिकल वेस्ट जो हो गया है इंडिया में, विच हैज ऑलवेज बीन अ सीरियस पब्लिक हेल्थ इशू, बट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स जो वेस्ट डिस्पोजल है वो इंक्रीज हुआ है मेनी फोल्ड्स। अब जब हॉस्पिटल के क्या सेफगार्ड्स होने चाहिए हेल्थ वर्कर्स से एसोसिएटेड, कि वो जो ट्रीटमेंट करे ये बायोमेडिकल वेस्ट का जो कोविड से रिलेटेड है वेस्ट, उसको कैसे सेग्रीगेट करेंगे? मतलब ये दीज आर टू ट्विन क्वेश्चंस। हाँ, नहीं, मैं इन ट्विन क्वेश्चंस का उत्तर दूंगा। ये बड़ा वाइटल इशू है ये। जी देखिए, जी जो इस बार जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उसमें जी सबसे पहले पुलिस थी, जी। जिन्होंने लोगों को अपनी जगह रोका, हाँ तभी जी तो कंटेन हो पाए। हाँ जी एडमिनिस्ट्रेशन था, जिन्होंने सोचा, कर्फ्यू के ऑर्डर्स दिए, बाकी चीजें मेंटेन करी। जी। साथ में स्वच्छता के कर्मचारी थे, जो आपके घरों को भी स्वच्छ रख रहे हैं, हॉस्पिटल्स को भी रख रहे हैं। इस वजह से। चूंकि अब ये इन्फेक्शन सब जगह है, ये 30% 40% के करीब इंडियन इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और जी 90% जो है जिनको कुछ सिम्टम नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, तो वो उनका भी, चाहे वो अपना एक चौड़ा टिश्यू लगा के फेंक दें, तो वो भी हाँ जी। इन्फेक्शन है। यस अच्छा, तो वो जाना हुआ वेस्ट और अनजाना वेस्ट, ठीक है, यस जिसमें कि इन्फेक्शन वाइड स्प्रेड है, और ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी चारों तरफ। यस। कंटेन हो गई ऑटोमेटिकली, ऑलरेडी स्पीड कंटेन है, पीक्स आएंगी लेकिन कंटेन हो गई। पीक्स आ रही हैं। हाँ जी हाँ हाँ हाँ, अच्छा, लेकिन ये है कि ये वाला जो वेस्ट है, हाँ चाहे जी वो हॉस्पिटल में जो पेशेंट को डील कर रहे हैं आप, हाँ जी उसमें आपके मास्क हैं, उसमें आपके ग्लव्स हैं, उसकी जो दूसरी चीजें हैं, अब एयरलाइंस के थ्रू भी आप डील कर रहे हो। हाँ तो जी बहुत सी जगह पे इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए आप कुछ चीजें यूज कर रहे हो, पीपी यूज कर रहे हो, दूसरी चीजें यूज कर रहे हो। अब उनके वेस्ट करने से वेस्ट बढ़ गया, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लेकिन जी उसकी गाइडलाइंस बनी हुई है, उसके लिए कुछ नया कुछ नहीं करना है। अभी जी जो इन्फेक्शन कंट्रोल्स के लिए हमारी जो बायोमिस्ट मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है भारत सरकार की, वो बहुत ही रोबस्ट है एक्चुअली। जी हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कैसे हैंडल करना है, उसके सब रूल बने हुए हैं। जी। सवाल इस बात का है कि उससे उसकी जल्दी से और जल्दी ट्रेनिंग, हर किसी को ट्रेनिंग होनी चाहिए। हाँ अच्छा, जी और कुछ नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ दिमागी है सारा मामला, कि अभी भी किसको कहाँ रखना है, कैसे डिस्पोज करना है, वो सबके गाइडलाइंस बने हुए हैं, और पिछले कुछ सालों में वो एनफोर्स भी हुए हैं। अब इसको ज्यादा हायर स्केल पे करना है। सो दैट मीन्स कि जो आपके साथ घरों में काम करने वाले जो स्वच्छता अभियान के कर्मचारी आ रहे हैं, वो इन्फेक्टेड नहीं हो, तो वो प्रॉपर मास्क यूज करें, वो प्रॉपर यूज करें। जी अच्छा, उस वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज करते हुए भी कहीं केयरलेस नहीं हो, तो जी उनका स्वास्थ्य पब्लिक में स्प्रेड। अच्छा, ये सब चीजें मैं समझता हूँ काफी अच्छी तरह से हैंडल हुई है, नहीं तो एक्सप्लोसिव होता है। अभी तक कोई ऐसे कारण आए हमारे सामने आए नहीं है, लेकिन लेकिन इसकी ट्रेनिंग चाहिए, बड़ी मेंटल ट्रेनिंग चाहिए। ये स्टेप फॉलो करने हैं। स्कूल के टीचर्स को चाहिए कि तुम यहाँ ऐसे कर लो। अच्छा, एयरलाइन वालों को एनफोर्स करने का हो, एयरपोर्ट वाले को मैनेज करने का, रोज मैसेज फ्लैश हो उसको, ठीक है। तो ये सब धीरे धीरे ना कमजोर पड़ जाते हैं, थोड़े दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद ये कमजोर पड़ जाते हैं। तो वो कमजोर नहीं बढ़ पाए, यही जरूरत है। ये बिल्कुल आवश्यकता है, इसके बीच रूल है बिल्कुल, उसके छोटे सिंपल ढंग से वो मैसेज आम आम जो वर्कर्स हैं और पब्लिक को और एनफोर्स करने वाले उनको कैसे पहुंचे, बिल्कुल ये सही। ये ये प्राथमिकता होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट सवाल इसी से रिगार्डिंग है कि सोसाइटी की जो परसेप्शन है, प्रैक्टिस है रिगार्डिंग दिस इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ वेरियस आइटम्स, जो भी पर्टिकुलरली अब क्योंकि कोविड टाइम्स है, लोग जैसे आपने बताया टिश्यू पूरा करके यहाँ फेंक रहे हैं, दे डोंट रियलाइज कि वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी के परसेप्शन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? कैसे हम ये स्वच्छता अभियान का उनको समझा सकते हैं कि आपका पूरा ये जो सिर्फ घर ही घर नहीं, ये पूरा आपका जो आप रोड पे चल रही है आपका घर का ही हिस्सा है, तो इसको भी आपको साफ रखना है, इट इज योर ड्यूटी एज वेल।
तो ये कैसे? जी मैं आपके प्रश्न का उत्तर मुझे हमारे दिमाग में आ गया, मैं इसे देना चाहूंगा। देखिए, जी आज से 5 साल पहले जब इस प्रधानमंत्री जी ने ये लॉन्च किया था स्वच्छता का ये प्रेजेंट अभियान, जी जी कोई नहीं सोच सकता था ये कभी चेंज हो सकता है। गांधी जी ने बहुत पहले बोला था, बहुत कोशिश की थी, लेकिन समाज नहीं बदला था। समझ नहीं तो बदला, बिल्कुल। एक इफेक्टिव लीडरशिप और साथ में राज्यों ने भी साथ दिया, नगर नगर वालों ने भी साथ दिया, हर किसी जनता उसके साथ जुड़ी, जी तो सर। करके दिखा दिया हमने, ठीक है। तो जी ये सोसाइटी बदल सकती है, ये जो सोचना था हम नहीं बदल सकते, हम बदल सकते हैं। अच्छा, उसके सस्टेन्ड एक्शन चाहिए कुछ टाइम तक। जहां जी तक कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, इसके बारे में लोगों के दिमाग में, जहन में है ही नहीं। अब डॉक्टरों के क्लिनिक है, वो बिल्कुल कोई एयर हैंडलिंग का कोई तरीका नहीं है, तो डॉक्टर बिल्कुल भी प्रभावित होता है, दूसरे आने वाले भी प्रभावित होते हैं। हॉस्पिटल्स में एयर हैंडलिंग का नीचे होना चाहिए, ऊपर चाहिए, क्या निकास होना चाहिए, उसकी बहुत कम हॉस्पिटल्स में थिंकिंग है। जी तो उसके लिए हॉस्पिटल के जो कंस्ट्रक्शन के जो इंजीनियर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट चाहिए। ये प्रयत्न कोशिश किए गई है, चंडीगढ़ से भी कोशिश हुई है और जगह से भी हुई, लेकिन वो चली उतनी ज्यादा नहीं हो पाई है। जी तो हम ब्यूटीफुल बिल्डिंग देखते हैं, लेकिन उसके अंदर एयर हैंडलिंग कैसे हो रही है, सब जगह उसके पूरा 100% परफेक्शन नहीं है। कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं मैं कहता कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन 10 गुना उससे ज्यादा चाहिए, ठीक है। चाहिए। तो चाहे चाहे वो, अच्छा, स्कूल के अंदर की एयर हैंडलिंग हो, या जहाँ के मैरिज इकट्ठी हो रही है वहाँ एयर हैंडलिंग हो। अच्छा, उसके बाद की उसमें कोई पैसा नहीं खर्च होगा, सिर्फ छोटे सा कि एग्जॉस्ट कहाँ लगना है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ये सिर्फ दिमागी चिंतन चाहिए और थिंकिंग चाहिए कि मेरे यहाँ से इन्फेक्शन के लिए ये प्रिकॉशंस मुझे यूज करने हैं। करने तो हैं। ये उसके लिए जो चाहिए, जो प्रेस के जरिए और दूसरे एकेडमिक एक्टिविटीज के जरिए जी सबको छोटे छोटे मॉड्यूल उपलब्ध होने चाहिए कि भाई मुझे एक हॉल मैनेज करना, तो मुझे क्या क्या चाहिए। तो बिल्कुल एयर सही। हैंडलिंग, आज वो कोरोना का चैलेंज है, लेकिन वो सभी के लिए है। सारी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम हो जाएंगी, आपकी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी ह्यूजली फर्क पड़ेगी। बिल्कुल अच्छा, तो इसमें काम करने वाले कार्यकर्ता लोग, जो यूजर हैं, वो भी सारे बेनिफिशियल होंगे। बिल्कुल। क्योंकि इसका उदाहरण बड़ा स्पष्ट है। हमने जापान में जो था, जापान में शुरू से किसी को जुकाम होता है तो मास्क डालता है वो, ठीक है, तो हाँ दूसरे जी को नहीं फैले वो। हाँ अब जी हमने 81 में पहली बार विजिट किया, तुमने भी यही सबसे मेरे 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 दिमाग में कौंधा था ये, ठीक है, कि ये कि क्यों डाला हुआ मास्क इन्होंने। हाँ जी। तो वो अभी देखिए, कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वहां नहीं फैलती जोर शोर से, ठीक है। बिल्कुल सही। तो एक कल्चरल जो इंडिया में बदलाव है, जिसके लिए मैं पूरा आशावान हूँ, क्योंकि स्वच्छ भारत के अभियान के जो अब तक की सक्सेस ने साबित कर दिया कि हम बदल सकते हैं, ठीक बदल है। सकते हैं, बिल्कुल सही। और पिछले 1 साल में भी बदल के दिखाया है, लेकिन ये टेम्परेरी है एक्चुअली। ये टेम्परेरी नहीं लास्ट चाहिए, इट शुड लास्ट एक्चुअली। इट यस। शुड लास्ट, डेफिनेटली। डॉक्टर साहब, आपसे और पूछना चाहूंगी सवाल ये कि इस स्वच्छ भारत मूवमेंट को हम एक्सपांड कैसे करें, कैसे इसको, इसके कंटेंट को आगे बढ़ाएं, क्योंकि लोगों के बीच जाके ये इश्यूज को हाईलाइट करना बहुत टफ है, बिकॉज हर एक बात पे आरोप पे प्रत्यारोप होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान मूवमेंट को थोड़ी सी सफरिंग इस मामले में भी हुई है, इसी इशू में, कि एक्सपांड इसको कैसे किया जाए। नहीं, मैं इसमें देखो, मैं आपको एक बार उसका उत्तर ऐसे दूंगा कि जैसे भी कोई नई चीज होती है तो लोग कहते हो नहीं सकता ये, क्योंकि नेचुरली हम एक बहुत पुरानी सभ्यता है, हमारे अंदर बहुत सारी आदतें जो अच्छी बुरी घुस गई हैं वो। अच्छा, जी और वो भी एरिया टू एरिया है, और इवन आदमी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में भी लोग अलग अलग हैं। जी जी तो अब उस चीज को क्योंकि हमने पहले एम्फेसाइज नहीं किया बरसों तक, तो बीच में कई पीढ़ियां हैं जो उन्होंने देखा ही नहीं, वो कहते हैं नहीं हो सकता ये, ठीक है, वो पहले उसे नेगेटिव स्टार्ट करेंगे। हाँ अच्छा, जी फिर हम थोड़े से, हमारे अंदर कोई एक छोटा सा वर्ग है, वो सिनिक है, ठीक है। चाहे उसने 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 आलोचना करनी है, चाहे वो दूसरा सही है, अच्छा है या बुरा, या बुरा ठीक है, है, बात सही। तो इस कारण से करनी है। अच्छा, वो वोकल भी हैं, वो अखबारों में भी छापते हैं और जगह भी बोलते हैं। तो जो साइलेंट मेजोरिटी है, वो उसका 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 डिस्कशन का पार्ट ही नहीं बन पा रही, तो बात बन ही नहीं पा रही है। बिल्कुल अच्छा, सही। लेकिन स्वच्छ भारत अभियान से बनी है वो। अच्छा, तो जहां तक कि सरकार, तो मैं समझता हूँ ये इन्फोर्स करेगी, सब जगह सारी सरकारें करेंगी, बगैर, मैं मानता हूँ कि इसमें कोई राजनीति का इशू है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल सही। पिछले साल कोरोना के टाइम भी सभी पार्टियों के सभी लोगों ने एक करके दिखाया है, एवरीबॉडी स्टूड टुगेदर, ठीक है। दैट्स ट्रू। तो अभी 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 भी लोग करेंगे, क्योंकि कोई, सब चाहते हैं अपने लिए अच्छाई, बिल्कुल सही। लेकिन ये मैसेज, सिंपल मैसेज चाहिए कि जी ये करने से ये होगा। देखिए, ये जो मास्क वाला चीज है, ये मास्क 1910 में एक डॉक्टर बू थे, उन्होंने मांचूरियन प्लेग में पहली उस डॉक्टर ने करके दिखाया कि इसी से पेंडेमिक कमजोर हुई। उसके तुरंत थोड़े दिन के बाद जो हमारा स्वाइन फ्लू पेंडेमिक, जिसमें करोड़ों लोग इंडियन भी मरे, ठीक है, उसमें भी जिन जिन एरियाज में लोगों ने इसको इफेक्टिवली यूज किया, उसके ऊपर फर्क पड़ा। और फर्क इस पेंडेमिक में भी इसका फर्क पड़ा। देखिए, सब जगह एंड में सब घूम फिर के बोले कि एंड में यही काम किया है यही काम। प्रिवेंशन में, तो ठीक है, ओके। जी 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 अच्छा, जी हाथ धोना और मास्क डालना और गैप मेंटेन करना, और जिस किसी को हो गया उसको घर पे रोक देना, ठीक है।
तो उसको छुपाना नहीं, लेकिन घर पे रह जाओ 2 हफ्ते, भाई कोई बात नहीं, तब तक आप भी नेगेटिव हो जाओ, किसी को रिस्क नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये सब करने से हम इनिशियली कामयाब हुए हैं और हम आगे भी कामयाब हो सकते हैं इसको सस्टेन करने से। लेकिन ये वाली चीज जो है वो हमेशा जहन का हिस्सा बन जानी चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे यार हर वक्त, तो लोगों को ये समझाना कि भाई स्वच्छता के अंदर क्या क्या है। स्वच्छता के अंदर ये क्लीन मेंटेन करना, सफाइयां मेंटेन करना, पानी मेंटेन करना, टॉयलेट्स मेंटेन करना, सड़कें मेंटेन करना, ये तो वन है ही। वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर हो, ये है। उसके साथ जो सांस से फैलने वाली इन्फेक्शंस हैं उनको रोकने के लिए आपको ये चाहिए, भाई जहां तक संभव है एयर कंडीशन मत चलाइए, क्लोज्ड एरिया में एयर कंडीशनिंग मत चलाइए जहां प्रिवेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, जहां पे आपका घर है तो घर में चलाइए जरूर, लेकिन कॉमन जहां ऑफिस है उनको एयर हैंडलिंग खुद ही चाहिए, ताकि इन्फेक्शन फैलने का चांस ही कम है। एनवायरनमेंट को चेक करते रहिए कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, ठीक है। जो कोई अगर आदमी आ गया तो उसको कहिए तो ये मास्क यूज करे, जिसको थोड़ा सा भी सिम्टम लगते हैं मास्क यूज करो, और या घर पे रहो या मास्क यूज कर लो, ठीक है। तो फ्यूचर में कंपैशनेट हो, जिस जुकाम को हम बड़ा माइल्ड सी चीज मानते हैं वो जुकाम कैन बी लीथल आल्सो। It could be an infection, respiratory infection which may kill people, ठीक है। अगर आपको टीबी है तो ट्रीटमेंट लो, कम से कम 1-2 महीने तक, जब तक आप नेगेटिव नहीं हो जाते, मास्क डाल के घूमो और घर को भी प्रिवेंट करो, सबको प्रिवेंट करो। तो ये बहुत सारे परमानेंट चेंज चाहिए, और इनके मैसेज फ्लैश होने चाहिए मेडिकल प्रोफेशंस के जरिए, टीचर्स के जरिए, अच्छा सारी यूनिवर्सिटियों के जरिए, संगोष्ठियों के जरिए, और पॉलिटिकल लीडरशिप में जो सरपंच हैं, प्रधान हैं, जो बेटर करते हैं उस एरिया में, ओपिनियन मेकर्स, वही कामयाबी में हिस्सा बनेंगे, वो बने हैं हमेशा ही, ठीक है। चाहे नगर के लीडर हों, चाहे छोटे बहुत लेवल के लीडर, जिनका लोगों से टच है, तो उनको रोप इन करके आप ये मैसेज फैला सकते हैं बार बार, और ये रिपीट होना चाहिए मैसेज कि ये करने से ये होगा। ये मतलब ये एक किस्म का रिचुअल नहीं है, ये हवन की तरह के हवन करके मत्था टेक के चले गए, ऐसा नहीं है। आपको भगवान से जोड़ना है, बिल्कुल परमानेंट जोड़ना है, ठीक है। ये सफाई मेरा पार्ट है ये। डॉक्टर साहब, how can we make an impact with this स्वच्छ भारत अभियान, sanitation drive for the public health? और एक और इसके साथ जुड़ा है, एक और ट्विन सवाल ये है कि इसका हम जब एक्सपांड करते हैं, एक्सपांडेड वर्जन ऑफ हाइजीन जो अभी आपने बात की है कोविड की से रिलेटेड, मैं कहूंगी कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेगा? बिकॉज ये इशू हमेशा जो भी उठाते हैं, सारे उठाते हैं कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे ही उठाते हैं कि स्वच्छता भारत अभियान के साथ हमारा जो ये है, ये इकोनॉमिकली हमें थोड़ा सा पीछे कर रहा है। क्या ऐसा है? ये बिल्कुल नहीं है। आपको मैं जो पहली बात कहूं, पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट पॉजिटिव है। इसके जितनी स्टडीज हुई, पहले क्या होता था कि इंडिया में बहुत सारे बीच में डायरिया के आउटब्रेक्स होते थे। हाँ जी। अच्छा, डायरिया के आउटब्रेक्स होते थे, तो डायरिया के आउटब्रेक से जी, डायरिया के आउटब्रेक्स के कारण बच्चे मरते थे, उनको मालन्यूट्रिशन होता था। तो ये बहुत कुछ हो रहा था ये पहले से। अच्छा, तो ये जब ये उससे वो सब ये जो स्टडीज हुई, उसके बाद जब से ये अभियान कैच अप करता गया, बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप की स्टडीज हुई। हमारे सर्वेलेंस के सेंटर को लोगों ने पूरे कंट्री के डेटा को एनालाइज किया, तो जो पीक्स आती थी बीच में वो गायब हो गई 2-3 साल के अंदर ही। और हमारे लाखों बच्चों की जान डब्ल्यूएचओ के असेसमेंट से, दूसरे असेसमेंट से बची है, ठीक है। उनकी मालन्यूट्रिशन बचा है, उनकी मेंटल ग्रोथ बेटर हो गई। अच्छा, एडल्ट्स की मालन्यूट्रिशन कम हो गई। तो पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट इज इमेंस इन टर्म्स ऑफ द लाइव्स, इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ लाइव्स, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये स्वच्छता से ना केवल हम देखने में अच्छे लगते हैं, पर उसके साथ साथ हमारी ह्यूज लाइव्स बची हैं, और कोई उसमें कोई शक नहीं है। जहां स्टडीज हुई हैं वो उसमें साफ उसका इम्पैक्ट दिख के आया। तो हम वैक्सीन के ऊपर टाइम वेस्ट करें, जैसे डायरियल डिजीज के लिए वैक्सीन चाहिए, टाइफाइड के लिए वैक्सीन चाहिए, लेकिन अगर स्वच्छता से टाइफाइड ही कम हो जाता है बिल्कुल, तो काम खत्म हो गया। क्योंकि एक मैं आपको इसमें आपको एक प्रश्न, एक मैं उत्तर दूंगा बड़ा सिंपल जी। 1840 से लेके 2007 तक, ठीक है, एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने पूरे सभी डॉक्टर्स का सर्वे किया पूरी दुनिया का। बीएमजे सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल्स में से है, रिस्पेक्टेड जर्नल में से। तो उन्होंने कहा भाई एनेस्थीसिया, एंटीबायोटिक, सर्जरी, ये सब, और हाइजीन जो सैनिटेशन ड्राइव थी विक्टोरियन एज की, तो उन सब में सबसे मैक्सिमम इम्पैक्ट किसका रहा? तो सब में हाइजीन इज नंबर 1, ठीक है। उससे करोड़ों लाइव्स बची हैं, यूरोप में भी, दुनिया में भी, ठीक है। ओके, तो मेडिकल एडवांसेस में ये जो सैनिटेशन है, it has brought the maximum gains to the society.
ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया अलोन, एवरीवेयर, ब्रिटेन से लेकर दुनिया भर में चलो आप। तो वो जो एक मैसेज जनता के मन में चाहिए कि भाई ये इकोनॉमिक इशू है, ये आप ये ना केवल आपको ठीक देखने में आप ठीक दिखते हो, लेकिन अच्छे लगते हो, लेकिन आपकी जो लाइव्स बचती हैं वो अनपैरेलल है। ये डाटा बार बार फ्लैश होना चाहिए। दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि जैसे ये होने के बावजूद हमारे मेडिकल वर्ग ने भी बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं की। मैं कुछ टाइम पहले लुधियाना में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कॉन्फ्रेंस में मुझे निमंत्रण दिया गया था, तो मैं वहां पे उसके बाद मैंने उसका एडिटोरियल भी छापा जी। उस तब मैंने जो सारा ये एनालिसिस किया कि कुल मिला के 5 स्टडीज हुई हैं इतनी बड़ी मेजर चीज पे, जो सोसाइटी चेंज हो गई है, ठीक है, जो अच्छे जर्नल्स में छपी हैं, और भी हुई होंगी जो अच्छे बड़े इंडेक्स जर्नल्स में नहीं है, मुझे नहीं मिली वो। तो अब तक ये सब बहुत सारी स्टडीज होनी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थे लोगों को भी मेरे एरिया में इसके इतना फर्क पड़ गया। तो मैं जो मानता हूँ इस चीज में क्या है, जो हमारे मेडिकल के एनलाइटेंड वर्क है वो फैशनेबल साइंस को छोड़ के इन चीजों को भी लें कि पब्लिक हेल्थ किस चीज से मैटर करता है। हम आपको बड़े स्पष्ट बताना चाहेंगे, पब्लिक को भी बताना चाहेंगे जो आपके माध्यम से सुनेंगे, कि ये जो स्वच्छता भारत का अभियान है, इसका हेल्थ के ऊपर मेजर इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है, ठीक है, काफी दिख गिरा सामने। अच्छा, इस और उसके साथ कई पब्लिक हेल्थ गेम्स 5 साल में 10 साल में देखोगे तो बहुत ज्यादा इमेंस होंगे, ठीक है। उसमें जो वर्ग नीचे से पॉवर्टी से मिडिल में आ रहे हैं वो भी, उनकी भी उसमें ही फर्क पड़ेगा, उनको मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं होंगे। आउटब्रेक हुए, पेंडेमिक हुए, बार बार बच्चे को डायरिया हो रहा है, ठीक है, अब इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रहे हो, बच्चा सफर कर रहा है या मर रहा है या उसका हेल्थ प्रभावित हो रहा है, बड़ों भी प्रभावित हो रहे हैं, टाइफाइड से प्रभावित हो रहे हैं, सारे गायब हो जाएंगे। हेपेटाइटिस ह्यूज बर्डन एक्चुअली उससे कम हो जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें का इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटी पे दिखता है, दिख रहा है और दिखेगा, तो लोग जुड़ेंगे इसके साथ। तो जो सिनिक है वो भी बिलीवर बन जाएंगे। और उसी तरह जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है, जिसके ऊपर आपका मेरा आप आज का जो संवाद आप फोकस कर रही हैं बार बार, क्योंकि सबको बॉदर कर रहा है वो, ठीक है, उस पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। वो एक्सपेंडेड वर्जन, दैट मींस कि ये आपका वाटर, टॉयलेट्स, बाकी घर की क्लीनिंग के साथ साथ आपके ये जो हाइजीन के हिस्से हैं कि मास्क, गैप, एयर हैंडलिंग आपके क्लिनिक में, घर में, हॉल में, बड़ी बड़ी जगह पे, जिससे एक दूसरे को फैलती है। अच्छा, मतलब कुछ नहीं है उसका, कहाँ एग्जॉस्ट लगना है, सिर्फ उतना ही है, नीचे लगना है, ऊपर लगना है, किस हाइट पे लगना है, ताकि एयर फ्लो आदमी को प्रभावित नहीं करे, वो नीचे से निकल जाए इन्फेक्शन, ठीक है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आप कैसे अपना हाथ को क्लीन करेंगे, वो पानी के अंदर जाएगा, बायोवेस्ट मैनेजमेंट में बिल्कुल तुरंत बंद करके रखेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं बाहर, ठीक है, और गाइडलाइंस के अनुरूप जो बनी हुई है, इम्प्लीमेंटेड है लास्ट सेक्शन में, ठीक है, उनको स्केल अप कैसे करेंगे। तो ये जो एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ आप बात कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान की, ये इन प्लेस है, लेकिन उस पर थोड़ी फोकस चाहिए। अभी तक देखिए क्या हो रहा है सारा, कि प्रधानमंत्री जिस चीज में लीड लेते हैं, अभी उसके भी जागरूकता अभियान के लिए उन्होंने भी लीड लिया है इस बार के लिए भी, कि ये जो कोविड के लिए ली है उन्होंने, लास्ट अक्टूबर से उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, ठीक है। जी। अच्छा, लेकिन वो हम एक्सपेक्ट करें कि हर दिन वही बोलेंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो अनफेयर होगा थोड़ा सा ये। एवरीबॉडी शुड डू दैट एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, एवरीबॉडी शुड डू दैट, बिकॉज दिस ड्राइव इज नॉट फॉर एनी पार्टिकल पॉलिटिक्स और पार्टी एनीबॉडी, दिस इज फॉर द लाइव्स एक्चुअली। यस, टू सेव लाइव्स एंड टू बी अ हेल्दी सोसाइटी। यस, थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने जो अपना नॉलेज शेयर किया है, इट इज ट्रूली अ वेल्थ, बिकॉज हमें काफी चीजें पता चलती है। अभी ढिलाई तो दे दी है, बट लोग फिर से शुरू हो गए हैं ढील देना अपने, उन्होंने हैंड हाइजीन नहीं मेंटेन किया है, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट भूल गए कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड ये एक कारण है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज फैलती ही जा रही है। हम इसको तभी रोक सकते हैं जब हमें बार बार कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराया जाए कि हाँ, अभी खतरा टला नहीं है, अभी हमें इसे और जूझना है, और साफ सफाई हमें सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, हमें मैं इस पे थोड़ा सा आपको इससे पहले आप कंक्लूड करें, मैं कमेंट इस पे देना चाहूंगा। जरूर। खतरा अभी नहीं टला, दूसरे खतरे आएंगे इसके बाद। अगर हम परमानेंटली नहीं बदलते हैं तो रोज खतरे आएंगे। तो जिस वक्त तो जैसे कि बिल्कुल इमरजेंसी मोड ने, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल क्रिएट कर दिए, डॉक्टरों की ट्रेनिंग दे दी, पुलिस और पब्लिक हेल्थ ने दिन रात लग के लोगों को घरों पे बंद रखा, बचाया, कुछ किया, वो एक मोमेंट हो सकता है फॉर ए टेम्परेरी, जिसको कि इंडिया हमेशा जीतता है। इंडिया हमेशा जंग में जब लग जाता है तो इकट्ठे होकर जीतते हैं ये, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन परमानेंट जो बदलाव चाहिए, कि अनअवेयर नहीं हम मारे जाएं, और बहुत सारी चीजों को जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो दिमाग में चाहिए, कि हमने पिछले साल भी इस कारण हमने प्रिवेंट करने में हम कामयाब हुए। देखिए, जब वैक्सीन नहीं थी
जी, तब भी हमने कंटेन करके दिखाया ऐसे। दिखाया, तब बिल्कुल सही, हमने वैक्सीन से और लाइफ बचेंगी, लेकिन वैक्सीन नहीं थी तब भी हमने कंटेन करके दिखाया। तो बिल्कुल वो जो एक चीज है, वो जो एक चीज है कि जो सैनिटेशन हाइजीन का जो इशू है कि भैया हाइजीन की ये परिभाषा है कि भैया आपको इन्फेक्शन तो दूसरों को प्रिवेंट करो, हाँ ये जी, तो प्रिवेंट करने के लिए मास्क यूज करो, ये वेल प्रूवन 1910 से आगे की प्रूवन स्टोरी है, ये कुछ अननोन नहीं है इसमें कुछ के अंदर। बिल्कुल सही, अच्छा, कैसे उसको क्लीन करो, कैसे आप पानी डिस्पोज करो, कैसे आप गैप मेंटेन करो, एक दूसरे को भीड़ की तरह मत चढ़ो, ठीक है। हाँ जी, अच्छा, भीड़ मत इकट्ठी करो, ये सब आते बदलाव टेम्परेरी किया हमने, तो लेकिन वो सस्टेन चाहिए, क्योंकि वो सेकंड और थर्ड वेव प्रिवेंट के लिए नहीं है, वो एटर्नली होना चाहिए वो, ठीक है। अभी तो चाहिए वो, क्योंकि अभी तो खतरा सिर के ऊपर है, अगली सर के अगली ऊपर, अगली अगली वेव पिछली से भी डेंजरस हो सकती है। बिल्कुल अच्छा, सही, लेकिन वो तो लोगों को सोचना चाहिए। पिछली बार लोग इटली, स्पेन, वहां की जो डेड बॉडीज की फोटो देख देख के डरे हुए थे, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, सही, क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम कामयाब रहा, हमारी पब्लिक हेल्थ कामयाब रहा, हमारा प्रशासन कामयाब रहा, हमारी पुलिस कामयाब रही, बिल्कुल तो सही, हम वो डेथ प्रिवेंट करने में बेटर इंप्रूव वो बच गए अपने, ठीक है। इन्फेक्शन नहीं फैली उस स्पीड से, हमारे डॉक्टर्स सीख गए अपने आप को कैसे हैंडल करना है पेशेंट्स को। हाँ जी, हाँ, अच्छा, तो टाइमली मैनेजमेंट से डेथ्स बच गई, तो उसका लोगों के दिमाग में वो फियर खत्म हो गया। बिल्कुल सही, लेकिन वो फियर चाहिए, एक बड़े बड़े पावरफुल कंट्री लोगों को बचाने में सक्षम नहीं हुए हैं, जिन्होंने लापरवाही की है। इनके नेताओं ने जस्ट हिंदुपंथी के लिए लोगों को मरवा दिया, ठीक है। ओ, अच्छा, तो वो एक साइकोलॉजी ये चाहिए कि उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, नथिंग डूइंग, निकलो फेलो, कोई मास्क नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे भी दुनिया में लोग मिले हैं, तो जी, लेकिन उसके उसके परिणाम तो लोगों ने भुगते हैं। भुगते तो हैं, आई थिंक हमारे लोगों के अंदर फिर भी मैसेज वही चाहिए कि भाई, ये जो जनरल हाइजीन, जो स्वच्छता का अभियान चला है, ये एक्सपेंडेड तौर पे रेस्पिरेटरी हाइजीन जो पिछले साल में हमने इफेक्टिवली किया है, ये हमेशा हमारी हैबिट का पार्ट बन जाना चाहिए, ये तो इस हमारी, महामारी को खत्म तो रोकने के लिए हाँ जी, और ये आने तो वाली हमारी, बीमारियों को रोकने। हाँ जी, ये तो हमारी सभ्यता का हिस्सा भी रहा है कि हम नमस्कार करके ग्रीट करते हैं, हैंडशेक यस, नहीं करते, यस, एंड शायद इट इज वन ऑफ द रीजंस टू हैव बीन यस, प्रिवेंटिंग लॉट ऑफ इन्फेक्शन एंड वाटरबॉर्न डिजीज बिल्कुल एज बिल्कुल, वेल। कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं है। वो तो उन्होंने सभ्यता में उन लोगों ने सीखे था कि क्या करने से क्या होता है, तो जी 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 उनकी साइंस तब की एफिशिएंट साइंस थी, वो इफेक्टिव साइंस थी, जी बिल्कुल मैं जी मानता हूँ। जी सर, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आज का जो ये था, आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बात की है। सैनिटेशन, ये जो स्वच्छता भारत अभियान है, बेसिकली हमारे यहाँ पे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आप इसके लिए जुड़े और आपने अपने बातें साझा की इसमें, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर। तक पहुंचे, आपने बहुत अच्छी तरह से प्रश्न पूछे और बड़े पेनिटेटिंग क्वेश्चन पूछे जो सबके काम आएंगे, सोसाइटी के, समाज के। धन्यवाद, शुभकामनाएं।